میرے سرکار گلشن میں، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بادائے توحید کے متوالوں، شمائع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے چاہنے والوں، خواجہ غنی نواز کے مانند مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور پیش کرنے ہیں. پڑھنے و آواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا. جب اللہ کو بندہ راضی کر لیتا ہے تو پھر اللہ بھی بندے کو راضی کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے جو سرکار غریب نواز الحمدللہ ہندوستان کے بادشاہ ہیں، ہندوستان کے بادشاہ ہیں، عطائے رسول ہیں. قربان جائیے، درود پاک پڑھنے. اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پھر ہمارے حالات کچھ ایسے ہوں گے کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے. حالات پھر ہمارے ایسے ہوں گے کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے. تیرا در چھوڑ کے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے. اور تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ. محبت سے بولے سبحان اللہ. تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ. تجلیہ ہیں صبح و شام یا درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو سنجر کی زمین ہے، اور سنجر کی زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں، سنجر میں رہنے والے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ تہجد گزار ہیں. سبحان اللہ. صبح اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. یہ معمول تھا. ایک دن کیا ہوا، جو ایک جناب اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے آسمان پر جو نظر ڈالی، اس وقت کوئی گھڑی مشین نہیں ہوا کرتی تھی. آسمان پر نظر ڈالی تو سفیدی ظاہر ہو گئی. محبت سے بولے سبحان اللہ. سفیدی ظاہر ہوئی تو انہوں نے کہا تہجد کا وقت قضا ہو گیا. دوسرے شخص کو اٹھایا، ذرا اٹھو تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح تہجد کا وقت ہے یا نہیں ہے. وہ دوسرے جناب اٹھے اور آسمان کو دیکھا، کہا تہجد کا وقت واقعی میں قضا ہو گیا، اب تہجد کا ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک کے بعد ایک اٹھتے گئے اور جو ہے آسمان کی طرف دیکھتے گئے کہ صبح نمودار ہو چکی ہے، تہجد کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب تہجد کی نماز قضا ہو چکی ہے. اب چرچا ہونے لگا. آگے بڑے، چوراہے پر پہنچے اور لوگ جمع ہوئے، آسمان کو دیکھا، کہا تہجد کا ٹائم ختم ہو گیا، آج تہجد قضا ہو گئی. اللہ اکبر. تہجد قضا ہو گئی. اس طرف سے میرے خواجہ غریب نواز کے والد محترم سبحان اللہ آ رہے تھے، مسجد کی طرف یہ روانہ ہو رہے تھے. اس طرف سے خواجہ غریب نواز کے والد محترم سید غیاث الدین رحمت اللہ آ رہے تھے. سبحان اللہ.
आपके वालिद का नाम सैयद गयासुद्दीन था। आप आ रहे थे, आपने कहा क्यों घबराते हो, क्या हुआ? कहा जरा देखो तो सही आसमान पे, आज जो है सुबह नमूदार हो गई है, सफेदी जाहिर होगी। नमाजों को देखकर आप मुस्कुराए, बोले नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले सफेदी क्या देखूं, आसमान पर देखो तो सही, सुबह नमूदार हो गई है। आपने फरमाया ये आसमान की सफेदी क्या है, आओ आओ गयासुद्दीन के आंगन में आकर के देखो। गयासुद्दीन के आंगन के अंदर एक शहजादा पैदा हुआ है। जिस वक्त से वो शहजादा पैदा हुआ है, मेरे दरो दीवार से नूर छम छम बरस रहा है। ये सफेदी कुछ भी नहीं है। गयासुद्दीन का दरबार जब से शहजादा आया है, मेरा दरबार महक रहा है। मेरे दरबार में नूर की बरसात। गरीब नवाज के आने की आमद। सरकार गयासुद्दीन फरमाते हैं कि मेरा जब से घर के अंदर ये शहजादा आया है, ये आसमान की सफेदी फीकी हो चुकी है, मेरे घर के अंदर रोशनी ही रोशनी हो रही है। अल्लाह अकबर, इतना खूबसूरत हसीन बच्चा आया है, सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत हसीन और सुभान अल्लाह मुबारक बच्चा पैदा हुआ है। और आपकी वालिदा का नाम क्या था? माहिनूर, उम्मुल वरा। आपकी वालिदा का नाम उम्मुल वरा नाम था, मगर मशहूर जो थी तो माहिनूर के नाम से मशहूर थी। आपको हर कोई माहिनूर से जानता था। सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत जब बच्चा देखा तो आपस में आपकी वालिदा कहती मेरे सरताज, इसका नाम क्या रखा जाए, इसका नाम क्या रखें? अब कभी आपके वालिद सोचते हैं, कभी आपकी वालिदा सोचती हैं। आखिरकार आपकी वालिदा कहती है मेरे सरताज, मैं जब ये मेरे शिकम में था तो मुझे कुछ ख्वाब नजर आए, कुछ बुजुर्ग मेरे ख्वाबों में आते थे और मुझसे कहते थे तू सलामत रहे, तेरे शिकम में जो बच्चा है बहुत ही नामदार और बहुत ही खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, हसनी भी है। अल्लाह अकबर। इतना कहा तो आपने कहा आप अपने बच्चे का नाम जो है हसन रखेंगे। सुभान अल्लाह, सुना है आपने? नहीं, हसन संजरी कहते नहीं सरकार को, क्या रखेंगे? हसन रखेंगे। सुभान अल्लाह, सरकार गरीब नवाज का नाम हसन रखा गया। हसन रखा गया, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हसन रखा गया। इस तरह से आपकी परवरिश हुई। और जब आप 14 बरस के हुए, आप 14 बरस या 14.5 बरस के हुए तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया और आपको विरासत में सिर्फ एक बाग मिला और एक पंचक्खी मिली। क्या मिली? बाग और एक पंचक्खी मिली। आपकी उम्र ही क्या है? 14 14.5 बरस की उम्र है। वालिद का साया सर से उठ जाता है। आप जो है इतने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर मुत्तकी थे कि आप अपने घर से सीधे बाग में जाते और बाग के अंदर कुरान की तिलावतें करते। सुभान अल्लाह, कुरान को पढ़ा करते और बाग को रखाया करते, पंचक्खी चलाया करते। अब सुनो आगे की बात सुनो। मेरे सरकार गरीब नवाज की हुकूमत कहां से शुरू हुई? मचल के बोले सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज जब कुरान की तिलावत अपने बाग के अंदर तो जिन्नात सुनते थे। आप क्या देखते हैं कुछ दिनों के बाद में कि पंचक्खी भी अपने आप चल रही है। सुभान अल्लाह। और बाग की सफाई भी ऑटोमेटिक हो रही है। सुभान अल्लाह। बड़े ताज्जुब में आए, कहा ये हो क्या रहा है? एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन, हफ्तों गुजर गए। सरकार गरीब नवाज हसन इस तरफ देखते हैं कुछ नजर नहीं आता है, इस तरफ देखते हैं कुछ नजर नहीं आता है। चक्की भी चल रही है। बाग का दरख्त से कोई पत्ता झड़ता है तो पहले से पहले ही उसकी सफाई हो जाती है। सुभान अल्लाह। एक दिन आपने दिल में ठाना कि उनको मिला जाए कौन है, तो आप बाग में जो अंदर बढ़े तो 4 शख्स जो है मुंह फेरे हुए खड़े थे। 4 शख्स जो है मुंह फेरे हुए खड़े थे, कपड़ा ओढ़े हुए खड़े थे। आपने आवाज दी है मेरे दोस्तों कौन हो तुम, मुझसे मुलाकात तो करो। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मुझसे मुलाकात तो करो, ये क्या मांजरा है? मेरी पंचक्खी भी चल रही है, मेरे बाग की सफाई भी हो रही है, तुम कौन हो? मुझसे मुलाकात करो। सुभान अल्लाह। उन्होंने अपना जो है चेहरा दिखाया और कहा हम जिन्नात हैं। ए हसन, जब से तुम कुरान की तिलावत करते हो हम तुम्हारे कुरान की तिलावत सुनते हैं और सुन सुनकर हम याद करते हैं। हम तुम्हारे शागिर्द हैं, तुम हमारे उस्ताद हो। सुभान अल्लाह।
बताइए क्या उस्ताद और शागिर्द का मर्तबा बाप की बराबर होता है? आपने कहा आप हमारे उस्ताद हैं और हम आपके शागिर्द हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है आपकी खिदमत करना, आपके बागों की रखवाली करना, साफ सफाई करना। सरकार हसन संजरी, हम आपके गुलाम हैं, आप हमारे उस्ताद हैं। मोहब्बत से पढ़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गरीब नवाज अजमेर की सरजमीन पर आए और अना सागर के पास में अपना डेरा जमा लिया। अजमेर में एक पंडित जी थे, वो अपने भगवान को दूध पिलाया करते थे। सुना है आपने वाक्य? नहीं। अब वो पंडित जी जो है अपने भगवान को पत्थर की मूर्ति को दूध पिलाने जाया करते थे। अब ये पंडित जी बड़े शौक और अंदाज के साथ अपने घर से दूध लेकर जो है अपने मंदिर में जाते और अपनी मूर्ति को दूध चढ़ावा करके आ जाते। इनकी एक होनहार शबाब पर जो बच्ची थी, बेटी थी, वो रोज इस चीज को देखती थी। इसके दिल में आया कि मेरा बाप जो है दूध लेके कहां जाता है, इससे पूछा जाए। बाबूजी आप कहां जाते हैं इस दूध को लेकर? कहा बेटी मैं भगवान को दूध का चढ़ावा करने जाता हूं। बोले भगवान? मैं भी देखूंगी कैसे भगवान है। कहा बेटी तू मत जा। लिहाजा उसको समझाया, मगर उसने एक दिन जिद की और कहा नहीं आज आने जाऊंगी। कहा बेटी तू मत जा। बोले ना मैं जाऊंगी। जिद की तो पंडित जी ने कहा ले बेटा तू भी चली जा। अब ये जो है दूध चढ़ाने के लिए आई। आने के बाद में देखा मंदिर में बड़ी, और जाने के बाद में एक पत्थर की मूर्ति है, उसको दूध सामने रख के, जो बच्चों का अंदाज होता है वही सामने रख के कहा दूध पियो। अब ये कहती जाती है दूध पियो, मगर वो पत्थर की मूर्ति, कोई दूध पिएगी? पत्थर तो पत्थर, कोई मिट्टी का इंसान भी दूध नहीं पिएगा। नहीं, पीना पड़ेगा। कहती रही तो अब देखती है ये तो दूध पी ही नहीं रहे, और मेरे बाप रोज दूध पिला के जाते हैं, रोज दूध चढ़ा के पिला के जाते, कहते कि मैं दूध पिलाने जाता हूं और ये दूध नहीं पी रहे हैं। हत्ता कि उसने कसम खाई कि ऐ मेरे भगवान जब तक तुम दूध नहीं पियोगे मैं यहीं रहूंगी और अपना माथा फोड़ दूंगी। क्या? अपना माथा पटक पटक के यहीं जान दे दूंगी। अब इतना कहा और माथा पटकने लगी, माथे से खून निकलने लगा। इस तरफ से मेरे सरकार गरीब नवाज का काफला गुजरा। अब सरकार गरीब नवाज इस तरफ से आ रहे हैं। देखा कि एक मंदिर से आवाज रोने की आ रही है। काफला रुका। आका ने इरशाद फरमाया, सरकार गरीब नवाज ने देखो तो सही माजरा क्या है। किसी ने बताया कि एक बच्ची है जो अपना माथा पटक रही है। कहा माजरा क्या है, पूरा पता करके आओ। पता करके आए, पता चला कि वो दूध पिलाने अपने भगवान को आई है। अपने भगवान को, पत्थर की मूर्ति है, उसको दूध पिलाने आई है, मगर वो कैसे पिए? सरकार ने फरमाया गरीब नवाज ने वो पिएगी। सुभान अल्लाह, वो भगवान दूध जरूर पिएंगे। सरकार हसन संजरी ख्वाजा गरीब नवाज मंदिर में पहुंचे और बेटी को दिलासा दिया, बेटी जरा आंखें खोलो, देखो तो सही क्या मामला है। बेटी बोली ये तुम्हारा और हमारा कोई मामला नहीं, मेरा और मेरे भगवान का मामला है। मैं जो है इसको दूध पिलाने आई हूं, ये दूध नहीं पी रहा है। आपने फरमाया ये कैसे दूध पिएगा, ये तो पत्थर का है। कहा नहीं, मेरा बाप रोज दूध पिला के जाता है तो मैं भी दूध पिला के जाऊंगी। अब सरकार गरीब नवाज समझ गए। सुभान अल्लाह, सरकार गरीब नवाज समझ चुके हैं। सरकार गरीब नवाज ने कहा ठीक है ये जरूर दूध पिएगा। आपने उस मूर्ति के पास खड़े हुए और कहा चलो भाई दूध पी ले, बच्ची पिला रही है, दूध पी ले, बच्ची जो है पिला रही है, बड़े अदब और एहतराम से पिला रही है, पी ले। ये अब पत्थर का है कैसे पिए? कोई जंबिश नहीं हुई। कहा दूध पी ले। कहा नहीं पिया जाएगा, कैसे पिए, पत्थर की है, दूध पी ले। सरकार गरीब नवाज जलाल में आते हैं, मूर्ति के पास खड़े होते हैं और जो उसका कान है उसको पकड़ते हैं और कान को ऐठा देते हैं। कहते हैं सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं दूध पीता है या नहीं, इतना कहना था कि पत्थर
पत्थर की मूर्ति जंबिश में आती है और जल हलचल अपने हाथों को हिला करके जो दूध का कटोरा था अपने लबों से लगा लिया है। तमाम मजमे ने देख लिया है, लड़की ने देखा कि वाकई में दूध पी लिया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गरीब नवाज ने कहा दूध पी ले। मैं समझता हूं कि सरकार गरीब नवाज अपने लबों को यहाँ हिला रहे हैं और इशारा मुस्तफा का पा रहे हैं। अब इसने दूध पी लिया, इसकी कसम मुकम्मल हो गई। अब ये घर जाती है, घर जाने के बाद में बाप दरवाजे पे खड़ा हुआ देख रहा है। देखा, देखकर हैरत की हद न रही। उसके माथे पे खून देखा, खून की छींटे देखी तो बाप घबरा गया और कहने लगा कि माजरा क्या है, ये माथे पे खून कैसा है, ये कपड़ों पे खून की छींटे कैसी है, बताओ तो सही। किसी ने तुम्हारे साथ कोई हरकत की है तो बताओ, किसी ने कोई नाजेबा हरकत की है तो बताओ, किसी ने तुम्हें छेड़ा है तो बताओ। अब ये बोली कि मुझे ना किसी ने छेड़ा है ना कुछ कहा है, मैं तो अपने भगवान को दूध पिला के आ रही हूं, मैं अपने भगवान को दूध पिला के आ रही हूं। क्या दूध पी लिया? कहा हाँ, उसने दूध पी लिया, अपने हाथों से उठा के पी लिया। सुभान अल्लाह। अब पंडित घबरा गया, बोले मैं तो चढ़ा के ही आता था और ये कह रही है कि अपने हाथों से उठा के उसने दूध पिया है। बोला बेटी ये नामुमकिन हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता है? मैंने खुद अपनी माथे की आंखों से देखा है और मैंने कसम खाई थी कि जब तक तू दूध नहीं पिएगा मैं अपना माता यही छोड़ दूंगी, यही अपनी जान दे दूंगी। पता ये चला कि उसने अपने हाथों से उठा के दूध पी लिया। सुभान अल्लाह। बेटी जब ये बात है तो चलो मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ, मैं पिला के देखता हूं। आज तक मेरे हाथों से दूध नहीं पिया है, इसने कैसे तुम्हारे हाथों से दूध पी लिया है? अब ये बेटी के साथ दूध लेके जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटी खुशी है और जो है महल्ले वाले लोग भी जमा हैं। तमाम महल्ले वाले जो है इस शक को दूर करने के लिए जाते हैं, मंदिर में पहुंचते हैं। बेटी को आगे बढ़ती है, कहती है लो भगवान दूध पी लो, कल जैसे पिया था आज भी ऐसे ही पी लो। मगर आप कहां से पिए? वो तो सरकार गरीब नवाज ने पिलवाया था। अल्लाह अकबर। जब सरकार गरीब नवाज किसी पत्थर की मूर्ति को दूध पिला सकते हैं, बताइए तो गुनाहगार अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले, मेरा कामिल यकीन है तो मैदाने महशर में मेरा गरीब नवाज अपने आका से सिफारिश करके गुनाहगार को जन्नत भी दिला सकते हैं। अब ये पहुंची मंदिर में कि दूध पी लो, दूध पी लो। अब कैसे दूध पिए? पब्लिक जमा है। कहा कि ये पागल हो गई है लड़की, कैसे दूध पिएगी? काफी देर हो गई तो जहन में आ गया दूध पीते हो या नहीं पीते हो? अगर पीते हो तो ठीक है, वरना कल वाले बाबा को मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अगर पीते हो तो ठीक है, वरना कल वाले बाबा को आवाज दे दूंगी। नाना सागर के पास बैठे हैं, इतना कहना था तो पत्थर की मूर्ति जंबिश में आती है और तमाम पब्लिक देखती रही। उस पत्थर की मूर्ति ने उन्हीं हाथों से फिर दूध को नोश फरमा लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही बेटी ने कहा ये बाबा कौन है, पंडित घबरा गया। पब्लिक जो है सचो पंज में पड़ गई, बेटा ये बाबा कौन है? कहा मैंने नहीं, बल्कि वो जो कल बाबा आए थे उनके डर के लिए इसने दूध पी लिया था, इसीलिए उनका डर इनको सता रहा है। अगर ये दूध नहीं पीते तो मैं उनको बुला लाऊंगी, तो इनको जरूर दूध पीना पड़ेगा। इतना कहा, लोग बोले उन बाबा से तो मिलवाओ। सुभान अल्लाह बोलिए, उन बाबा से तो मिलवाओ। पता चला कि बाबा तो अना सागर के पास। बेटी ने पहचान लिया यही तो बाबा है जिनका डर उनको सताया और दूध पी लिया है। पंडित समझ गया ये कोई मामूली इंसान नहीं है, अब रास्ता बदल लेना चाहिए, अब दिल का इख्तियार इनके इख्तियार कर देना चाहिए। जब इतना कहा और कदमों में गिर जाता है, कहा मैं ही नहीं तन्हा बल्कि जितने मेरे साथी हैं इनको सबको अपना गुलाम बनाकर कलमा तैयबा पढ़ा दीजिएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तमाम मजमा कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। अब ये खबर जो है पूरे शहर में फैल गई।